ओके सर, गुड आफ्टरनून टू एवरीबॉडी। आज का जो वेबिनार है हमारा, दैट इज ग्रेट थिंग, क्योंकि हम लोगों के साथ आज हमारे साथ जगदीश आचार्य जी हैं, हु इज सीईओ इन पेंट एंड कोटिंग स्किल काउंसिल। 48 years of corporate experience in the paint industry, of which 25 years was spent in international market of South Pacific, Australia, China, East Asia. Also advised Asian Paints and Crompton on CSR. Have worked with at least 4 NGOs closely, and important positions held and accomplished by Jagdish sir, CEO of PPG Asian Paints, member of global leadership team of PPG USA 2008-2014, president and member of the Management Council of Asian Paints India Limited 2008 to 2014, regional vice president and member of Management Council of Asian Paints International 2000 to 2008, CEO of Asian Paint Queensland Limited from 1996 to 2000, CEO of Asian Paints Vanuatu Limited from 1993 to 1996, board member of various subsidiaries of Asian Paints from 1985 to 2008, CSR advisor to Asian Paints and Crompton from 2015 to 2018, SVP lead partner of Mumbai chapter of Social Venture Philanthropist International 2015 to current, on the board of Insignia Limited Tanzania 2017 to current, on the board of Wilson High School Pass Students Association and Paint and Coating Council 2017 to current, on the governing councils of Indian Paints Association and SMV Institute of Technology and Management 2017 to current date till date, on the boards of studies of NITTE Educational Institute 2017 to current date till current date, associate member of Australian Institute of Management since 1996, and Galaxo gold medalist from IIM Calcutta. This is very important that Jagdish sir is gold medalist, Galaxo gold medalist from IIM Calcutta, and Udyog Ratna Award. Great sir, and I don't think this की एजुकेशन कुछ बताने की जरूरत रहती है इसके बाद, क्योंकि जगदीश सर का जो ये इंट्रोडक्शन है अपने आप में बहुत बढ़िया और बहुत वास्ट इंट्रोडक्शन है. आई वेलकम जगदीश आचार्य सर on today's session. Over to Jagdish Acharya sir. Thank you very much, sir, and thank you very much for your kind words and a wonderful welcome. साहब, मैं तो बहुत आप लोगों का सबका मैं शुक्रगुजार हूँ कि हमें एक मौका मिल रहा है पेंट एंड कोटिंग स्किल काउंसिल के बारे में बताने के लिए और जो काम गवर्नमेंट कर रही है उसके बारे में बताने के लिए. और मैं मिलन साहब का स्पेशली आई एम ग्रेटफुल टू हिम एंड थैंकफुल टू हिम, बिकॉज ये ऐसा एक आदमी है जो पेंट इंडस्ट्री के लिए कुछ ना कुछ करने चाह रहे हैं. वो हमेशा मुझे यही कहते हैं कि भाई अच्छा से हम लोग क्या और कर सकते हैं. एज एन ISPA प्रेसिडेंट ही वाज वेरी सपोर्टिव of our efforts at promoting skilling, and even now he said, look, let us discuss this, we need to carry this message across. So Milan sahab, I am really grateful to you. Thank you. Thank you Jagdish. And Manish, Milan sahab is also on the board of governing council of the paint and coating skill council. सर मिलन सर हमारे लिए मिलन भाई है. अच्छा. और मिलन भाई के लिए तो मतलब हम लोग जो भाई के लिए एक रिलेशन होता है, जो एक रिस्पेक्ट होती है, वो है सर. सर जी भाई तक रखना, दुबई वाला भाई तक रखना, वो दुबई वाला भाई नहीं बना देना. नहीं सर, नहीं सर, आप चाहे वैसे हो या नहीं हो, हमारे लिए तो आप हर किस्म से बड़े भाई रहोगे सर. वो आपकी वो गुजराती भाषा में कई लोग गुजराती होंगे तो कहते हैं मोटा भाई, तो हमारे आप मोटा भाई हो सर. सही कहा आपने साहब, सही कहा. थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू. एंड ये इससे अच्छा फोरम हमें नहीं मिलेगा. जो बात मैं कहने जा रहा हूँ ये आपको बहुत मेरे ख्याल से बहुत यूजफुल रहेगा. और मनीष साहब मेरे साथ मेरे साथी भी हैं PCSC के वाइस प्रेसिडेंट एफिलिएशन
मैंने देखा क्वालिटी स्टैंडर्ड्स वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, हमारे रीजनल मैनेजर्स हैं और हमारे साथी और हैं, और एक मिस्टर विशाम करके हैं जो 2Com के हैं, उनके भी बारे में बात करूंगा मैं। एक लिंक आएगा जहां मैं बात करूंगा। तो अगर आपकी इजाजत हो तो मैं मेरी प्रेजेंटेशन शुरू करता हूं सर। अरे सर आप करो सर, आप इजाजत वाले वर्ड मत बोलो सर प्लीज। You just do start, please. Thank you and welcome to all PCSC team. Yes, please welcome sir. Everybody is welcome sir. So good afternoon everyone, and आज के इसमें I want to cover the following points. एक तो introduction to the apprentice program including National Apprentice Promotion Scheme. ये apprentice program क्या है, इसके बारे में मैं आपको सबके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। और एक changes लाए हैं, हमें सब पता है कि apprentice क्या है, but what are the changes in the program to make the program more attractive to the industry? What changes the government has brought about? I will discuss that with you. What are the government support provided to establishment engaging apprentices, and why it makes business sense for the organization to engage apprentices? And lastly, the overview of the apprenticeship portal. Ladies and gentlemen, I'm going to cover a lot of things. What I'm going to do is, instead of going into detail of each slide, I will share the presentation to you via Paint Vision, and you can always connect back to us to get further clarification. But my job today is to make it as simple as possible to all of you and convince you that apprenticeship program is a good program. जब भी हम लोग apprenticeship बारे में बात करते थे पहले, तो एक तरह से resistance मैंने देखा है लोगों में, इंडस्ट्री वालों में, especially small and medium enterprise, बोलते यार ये झमेला में नहीं फंसना है, मुझे गवर्नमेंट के साथ झमेले में नहीं फंसना है। लेकिन वो बहुत चेंज हुआ है। अभी गवर्नमेंट has become very progressive in these matters, has become really supportive. The spirit of support is extremely evident in the way the government has evolved the program. उसके बारे में मैं बताऊंगा। We are all going through tough times today, and whether you are small, big, medium, I think everybody is going through a tough time. It's interesting that this crisis has touched everyone in equal measure. But of course, the small, the medium, the disadvantaged, the underprivileged, the marginal people are most affected. And I know your industry is also going through tough times with the lockdown. In a responsible and yet painful way, we are all contributing to protecting ourselves and our fellow countrymen. And this is not only the need of the hour, but it's a sacrifice that we have to make. But all of us in today's webinar, I think I will not be wrong in saying that we are all confident that we will bounce back as a business and regain financial good health. Of course, let us pray and wish together for this. Now, when you resume operations, and in some places, as Mr. Manish said, some places is opening up. I was told Kerala is opening up, like that some places are opening up. When you resume operations in your own area, it may necessitate recruiting fresh workers, as some may have gone to their hometowns or may have migrated elsewhere. Or you might want to rejig the whole thing. I would say this is a good time to consider NAPS, National Apprentice Promotion Scheme, as a route to recruit. So let us understand what it is all about. NAPS basically in a nutshell, and I will go into the detail in some time. NAPS, that is a National Apprentice Promotion Scheme, as designed by the government, gives you the flexibility to recruit, train, and evaluate the candidate's suitability as a long-term employee. And during apprenticeship, you pay a stipend, and the government will subsidize this stipend. We'll discuss this in detail. And more importantly, an apprentice is not a worker, so there is no PF or ESIC contributions required to be made. Also, you can terminate if the apprentice does not measure up to the expected standards.
there is no liability on account of labor law or labor rules. So let us discuss what this apprenticeship and what is the genesis of it. I would like to share with you the genesis and the importance of it in India. See, on one side, you have the demand side. All the business entrepreneurs who are in today's webinar will agree with me 100% when I say that there is a high demand for industry-ready skilled manpower in India. And you will say, look, I need good people. किसी से भी आप बात कीजिए, कॉन्ट्रैक्टर हो, मैन्युफैक्चरर हो, खास तौर पे वो बोलेंगे यार हमें अच्छे स्किल्ड पीपल मिल नहीं रहे हैं. तो एक साइड में ये इशू है और दूसरे साइड में इशू ये है कि हमारा जो देश है, इंडिया इज अ नेशन which is young. There are youth educated, skilled, yet not industry ready. People are there, but the employability is low. So what apprenticeship does is creates a bridge between the demand and supply, and the reforms that have taken place make it extremely industry friendly. What is the Apprentice and the Apprenticeship Act of 1961? There have been modifications on that, which also I'll explain to you. Apprenticeship training is divided into two parts. एक basic training होता है और एक on the job training. और जो act है, in fact ये जो act है, ये statutorily a compulsory act है. You have to follow it. Yes, statutorily you are required to comply to this from a statutory angle. That is, if you have employees between 0 and 3, then you are not eligible or it doesn't apply to you. If you have employees strength between 4 and 29, you can opt for this to take advantage of the Apprenticeship Act. But if you have employee strength of more than 30, then it is mandatory to engage 2.5% of your employee strength as apprentices. Okay, and is in apprentice को आपको stipend देना जरूरी है. So as per the law also, there are requirements that if you have more than 30 people or 30 and above, then you have to have 2.5% of that you have to keep as apprentices, for which you have to pay minimum stipend. And this is legally, it's a compliance issue. You have to legally comply to this aspect. And there is a minimum stipend rule also specified. Of course, all of you must be paying more than this to your workers. But if you're taking an apprentice, the minimum stipend for anybody who is done from class 5 to class 9, minimum as per the Government Act is 5,000 per month. 10th class to 12th class is 6,000. National or state certificate holder technician हो या vocational apprentice हो, उसका एक 7,000 per month है. वैसे इन्होंने एक रूल बनाया हुआ है और इसके एक और भी रूल है, इन्फ्लेशन रूल भी है. But mostly क्या होता है in our industry, paint industry, many people are paying a little more than this for the kind of grades that I have just specified. Just a minute, sir. Yeah, एक चैट किसी ने बोला है, मैं जरा देख लूं क्या है. हाँ, ठीक है. So ये जो है ये specified stipend rates जो गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया हुआ है. The rule also says that आप अगर आपके पास 30 एम्प्लॉइज हैं तो 2.5% मिनिमम 2.5% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ आपको एम्प्लॉइज को अप्रेंटिस रखना ही होगा, अप्रेंटिस आपको रखना होगा. बट यू हैव द बेनिफिट, यू हैव द डिस्क्रिशन, यानी आपको इट इज अलाउड कि आप 15% तक भी रख सकते हैं. मान लीजिए आपके पास 50 पीपल आर देयर, then you can keep up to 15% of 50. Okay,
So almost 7 people, 8 people you can keep as apprentices. That is allowed by the law because you can take advantage of the stipend वगैरह. ये जो apprentice program है, it is anywhere between 6 to 36 months. और ये जो ट्रेड्स हैं ये हम लोग डिजाइन कर सकते हैं आपके लिए. मान लीजिए काफी ट्रेड्स अवेलेबल हैं. इसमें पेंट एंड कोटिंग स्किल काउंसिल जो हमारा काउंसिल है, वी कैन हेल्प यू इन गिविंग creating the syllabus which is as per your requirement. We can design the courses as per your requirement. तो ये हम आपके लिए कर सकते हैं. और ये जो कोर्सेज हैं ये हम लोग डिजाइन करके आपके जो जॉब रोल सुटेबल है, मान लीजिए somebody wants a technician, paint technologist, या somebody wants production worker, तो उसके लिए जो कोर्स करना है, बेसिक ट्रेनिंग और जो वीक टू वीक जो करिकुलम है वो हम लोग तैयार करके दे सकते हैं. ये ट्रेड्स अवेलेबल में हैं और काफी हद तक ये रेडीमेड अवेलेबल हैं, बट वी कैन इवन मॉडिफाई. और इसमें सर्विस सेक्टर इज आल्सो इन्वॉल्व. जैसे मान लीजिए कोई सेल्समैन का भी काम करना है तो वो भी इन्वॉल्व है. एडमिनिस्ट्रेटिव इज आल्सो इन्वॉल्व. सो इट इज अ वेरी वाइड एप्लीकेशन ऑफ दिस act is allowed. And interestingly ये सब पोर्टल कंप्यूटराइज्ड है, तो बड़े आसानी से हम लोग इसमें रजिस्टर कर सकते हैं और डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं. लेकिन इसके लिए भी हम स्किल काउंसिल्स आपको हम हेल्प प्रोवाइड करेंगे. वी विल गिव यू ऑल द असिस्टेंस एंड डॉक्यूमेंटेशन हेल्प व्हिच इज रिक्वायर्ड. अप्रेंटिस एक्ट में एक एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रेंटिस एडवाइजर करके रहता है. इट्स एन एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन. और गवर्नमेंट ने टू मेक इट इजियर फॉर द इंडस्ट्री इंटरेक्शन, दे हैव नॉमिनेटेड a person like me, let's say the chief executive of a sector skill council, as the joint apprentice advisor, which will actually make it very easy for you to connect with me and ask for advice, and I can guide you, or my team along with the third party aggregators, we can guide you to join this scheme or take advantage of this scheme. अब ये अप्रेंटिस जो है ये वर्कर नहीं है, ये ट्रेनी है. सो इसका लीगल स्टेटस ये है कि ये अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग करता है इन द पर्टिकुलर ट्रेड जो डिजाइन किया हुआ है. एंड लेबर लॉ का कोई प्रोविजन इसके ऊपर लागू नहीं होता है. प्रोविजन ऑफ एनी लॉ विद रेस्पेक्ट टू लेबर shall not apply to or in relation to such apprentices. जैसे PF Act is not applicable, ESIC Act is not applicable, though he can be covered under through a separate scheme, but ये आपके लिए in a way it reduces your administrative burden and legal liabilities. अब ये NAPS है क्या? What is this NAPS? Basically, National Apprentice Promotion Scheme is a scheme of Government of India to provide financial support to establishments undertaking this program. And ये जो NAPS का scheme था, ये August 2016 में ये promulgate हुआ, and it is made applicable since then. There are two parts in this scheme. One is it promotes apprenticeship training in the country, and second, it provides financial support to all establishments. ये financial support क्या है? One is you can engage apprentices under the Apprentice Act, and you are given 25% of the prescribed stipend, subject to a maximum of 1,500 per month. So suppose if you are keeping somebody as an apprentice at, let's say, 6,000 rupees a month. So 1/4 of that, that is 1,250 or so, whatever it is can be given, will be given by the government. 25% of that will be given by the government as subsidy to that person, to that employee, to the employer,
so that you can use that subsidy for the employee. Also, for training, the government has set aside 500 hours for training, for which the government is ready to give you, subsidize up to 7,500 rupees per employee, per apprentice, for a training schedule if you do about 500 hours. So there are two parts to this. Once again, the financial assistance given to all organizations who register as employers under the Apprentice Act or National Apprentice Promotion Scheme will get a reimbursement of 25% prescribed stipend, subject to a maximum of 1,500 per month per apprentice, and a reimbursement of cost of basic training up to a limit of 7,500 for maximum 500 hours, that is at the rate of 15 rupees per hour by the Government of India for basic training. What is this basic training is also discussed in detail, and the Skill Council, we can help you in organizing this for you through our training partners and ensuring that your apprentices are trained properly. We can also do it at your site, provided there are certain qualifications, certain rules, conditions are met. We can also do it at your site. So these details, I don't want to discuss it in detail today, but you can always ask us for further support in this area. So basically, once again, I want to share with you that the sharing of cost of basic training with basic training providers, 7,500 for 3 months, and 25% of prescribed stipend, subject to a maximum of 1,500 per month per apprentice. This is the financial benefit the government is willing to give you. What is basic training? I have defined here. I don't want to go through it today. I will share it with you, and we can develop the basic training for you. We can also develop on-the-job training for you. What is the week by week curriculum? हमने बनाया है, किताब बनाए हैं हमने, वो हम जिनको भी इंटरेस्ट है हम फ्रीली उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. और एक बात है, बेसिक ट्रेनिंग फॉर सम पीपल आर एग्जाम्ड. जो ITI पास आउट्स हैं, ग्रेजुएट्स हैं, उनको बेसिक ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है. और नॉर्मली बेसिक ट्रेनिंग जो है वो 20 to 25% ऑफ द प्रोग्राम में रहता है, और बाकी की 75% इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग. हु इज एन एम्प्लॉयर, इसमें डिफाइन किया हुआ है. एक्चुअली फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस आप सब जो हैं क्वालिफाई टू बी एन एम्प्लॉयर, और जो एम्प्लॉयर बेनिफिट ले सकते हैं उनको मिनिमम 4 से ऊपर जो भी हैं वो बेनिफिट ले सकते हैं स्कीम का, और 29 के ऊपर जिनका एम्प्लॉय स्ट्रेंथ है उनको ये कंपलसरी है इसमें पार्टिसिपेट करना. हु इज एन अप्रेंटिस, कौन है, उसके एज का बार क्या है, और उसको क्या करना पड़ता है, हाउ शुड ही एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, ये सब दिया गया हुआ है. बट यू डोंट हैव टू वरी. मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर आपको इंटरेस्ट है तो इसके लिए हम लोग वी आर प्रेजेंट टू हेल्प यू. हमारे जो साथी हैं, पार्टनर्स हैं, वो आपके साथ काम करेंगे टू एंश्योर दैट ऑल दिस इज सॉर्ट ऑफ प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड एंड कॉन्ट्रैक्ट्स आर ऑल प्रॉपरली डन. ये आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है. फिर भी ये जो डेफिनेशंस हैं, हु इज एन एम्प्लॉयर, हु इज एन अप्रेंटिस, ये जो प्रेजेंटेशन में मैंने दिया है वो आपको मैं जरूर डिस्ट्रीब्यूट करूंगा. बेसिकली कोई भी ट्रेड ले सकते हैं. देयर इज नो बार. डेजिग्नेटेड ट्रेड करके एक है, ऑप्शनल ट्रेड करके है. ये जो डेफिनेशंस है इसके बारे में आप चिंता ना करें. बेसिकली जो भी ट्रेड आपको चाहिए वो हम लोग इसके अंदर में मिल सकता है और उसको डिजाइन भी कर सकते हैं. डेफिनेशंस हैं, डेजिग्नेटेड ट्रेड क्या होता है, ऑप्शनल ट्रेड क्या है. ये संक्षिप्त में मैं कहूँगा यही कि जो ट्रेड, जो जॉब रोल आपको आपके लिए यूजफुल है वो हमें जरूर मिलेगा, और जो नहीं मिलेगा वो हम अप्रूव करवा लेंगे. इसमें एडवांटेज ये है कि अगर जो
एप्लीकेबल ट्रेड है वो हम अगर लें, एडवांटेज ये रहता है कि ये नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क यानी NSDC के द्वारा ये अप्रूव किया गया हुआ है, तो इसमें फिर असेसमेंट इजी हो जाता है, इसमें सर्टिफिकेशन इजी हो जाता है और वो सिस्टम में अच्छी तरह से जल्दी आ सकता है। फिर भी अगर नया कोर्स डेवलप करना पड़े और कुछ खास चेंजेस कस्टमाइज करने पड़ेंगे, करने के लिए हम लोग तैयार हैं और वो हम हमारे NSDC से अप्रूव करवा ले सकते हैं। और एक बात है कि आई नो सम ऑफ यू माइट बी इन्वॉल्व्ड इन CSR स्पेंड्स और मे बी रिक्वायर्ड बाय लॉ टू स्पेंड फॉर CSR। इसमें एक अच्छी बात ये है कि गवर्नमेंट हैज सेड जो मिनिमम 2.5% से लेकर ऊपर मैक्सिमम 15% तक जो अप्रेंटिस रखना चाहते हैं, उनके जो स्किलिंग का जो एक्सपेंसेस है, मतलब जो एक्सपेंस वो करते हैं अप्रेंटिस स्टाइपेंड के लिए या जो भी उनके ट्रेनिंग के लिए, दैट कैन बी क्वालिफाइड एज अ CSR एक्सपेंस। इसका मतलब ये हुआ, ये जरूरी नहीं है कि CSR स्पेंड आप कहीं और बाहर करें। आपके अप्रेंटिस अगर हैं और आप बढ़ाना चाहते हैं अप्रेंटिस के नंबर्स, तो गवर्नमेंट इज विलिंग टू कंसिडर दैट एज अ CSR एक्सपेंस। फिर मैं अभी जाऊंगा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NAPS। ये थोड़ा सा डिटेल में है, तो मैं जरा ऊपरी से I will just go scan through it so that I don't bore you with the details, but it is not that difficult as it looks. It can be made easier by support received from the Skill Council people, as well as I mentioned to you, there is a third-party aggregator. 2Com people are our third-party aggregator. They are accredited by NSDC also. They can help us in implementing the NAPS program. इसमें बेसिकली अप्रेंटिसशिप रूप ये है कि क्लास 5 से क्लास 9 जो आता है उसको शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग दिया जाता है और 5 to 9 बेसिक ट्रेनिंग अप्रेंटिस का होता है। फिर ऑन द जॉब अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम रहते हैं और जो ITI के पास है उनको स्ट्रेट अप्रेंटिस ऑन द जॉब प्रोग्राम दिया जाता है। ये जो करिकुलम है ये हम लोग डेवलप करके दे सकते हैं। फॉर पेंट एंड कोटिंग इंडस्ट्री सेक्टर वी कैन डू इट। फॉर अदर सेक्टर, मान लीजिए आप में कोई और सेक्टर के भी हैं, so we can get those sector people to help you design those courses. अभी ये eligibility criteria है, basically इसमें कोई खास ये नहीं है। You have to be, contracts have to be properly filled up and done, and the assessments have to be done by skill councils. In your case, it will be the skill council who will do the assessments. So ये सब qualification eligibility employer का है। ये पूरा डिटेल्स मैं आपको दे दूंगा, इसमें कोई there is nothing complicated, and how to engage apprentices is also specified. The government has provided portals where you can go and get a data bank of people who are interested in the apprentice program, and you may also choose and select some of them. I also know training partners or NGOs whom you can consult and say, bhai aap log ke yahan any youth who is interested to become apprentice, या आपके कॉन्टैक्ट से कोई भी हो अप्रेंटिस के लिए इंटरेस्टेड हो, उनके भी हम लोग ले सकते हैं, उनको भी ले सकते हैं और वी कैन डिवाइज अ प्रोग्राम फॉर देम। रीइंबर्समेंट इज डन ऑन क्वार्टरली बेसिस। ये भी डिटेल्स सब वेरी स्पेसिफाइड, बड़े सिस्टम से होता है आजकल, उसमें कोई किसी का सब्जेक्टिव डिसीजन इन्वॉल्व नहीं है। इट इज ऑल ऑब्जेक्टिवली डन, वेरीफाइड एंड रीइंबर्स्ड। Again, for this, guiding you for this, NSDC has recommended, National Skill Development Corporation, government का जो आर्म है, गवर्नमेंट के जो साथ काम करते हैं NSDC, उन्होंने रेकमेंड किया है थर्ड पार्टी एग्रीगेटर्स को, और वो आपको ये सब हैंड होल्ड कर सकते हैं एंड दे कैन गाइड यू फॉर दिस, टुवर्ड्स दिस। अच्छा, सेक्टर स्किल काउंसिल क्या करता है? जो हम सेक्टर स्किल काउंसिल है, एक तो मैंने बताया आपको कि मैं खुद जॉइंट अप्रेंटिस एडवाइजर हूँ, तो मेरा अप्रोच थोड़ा सा इंडस्ट्री फ्रेंडली रहेगा एंड वी विल एंश्योर द सपोर्ट इज गिवन टू द इंडस्ट्री। और हम लोग जॉब रोल आइडेंटिफाई करते हैं और NSDC के साथ डिजाइन करते हैं कोर्सेस। क्वालिफिकेशन पैक्स यानी जॉब रोल्स इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाते हैं और करिकुलम तैयार करते हैं
हमारे टीम में आज हमारे कलीग हैं जो उसका करिकुलम अप्रेंटिस करिकुलम तैयार करते हैं फ्रॉम द जॉब रोल, और हम लोग जैसे ऐसे सेमिनार है काफी लोगों को बताते रहते हैं कि अप्रेंटिस प्रोग्राम क्या है, आपको क्या करना चाहिए, क्या मिल सकता है उसमें बेनिफिट। ये हमारा काम है। ट्रेनिंग पार्टनर्स, ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स हम लोग एम्पैनल करते हैं, और एम्प्लॉयर्स को भी एम्पायर करते हैं। जो रजिस्ट्रेशन जैसे आप जैसे लोग हैं उनको हम लोग कन्विंस करते हैं कि अप्रेंटिस ले लो आप, इन द लॉन्ग रन इट इज गुड। और बाकी के जो है रजिस्ट्रेशन, फिर कैपेसिटी बिल्डिंग एक्सरसाइज, एचआर का कोई टीम हो, वी कैन गो एंड एक्सप्लेन टू देम हाउ टू डू इट, और असेसमेंट सर्टिफिकेशन, वो सब काम सेक्टर स्किल कैन प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट टू ऑल ऑफ यू। थर्ड पार्टी एग्रीगेटर का काम है टू हेल्प इंडस्ट्रीज फॉर ऑल दिस डॉक्यूमेंटेशन पर्पस एंड गाइड देम रेगुलरली। ये थर्ड पार्टी एग्रीगेटर का मैंने जो जिक्र किया, इसका भी डेफिनेशन है और क्या है इसके बारे में भी लिखा गया है, मैं आपको वो शेयर कर सकता हूँ। लास्टली आई वांट टू कम व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। जर्मन मॉडल देखिए, इंडियन मॉडल देखिए। इंडियन मॉडल इज वेरी वेरी इंडस्ट्री फ्रेंडली। हम लोग सब हमेशा बाहर घूम के आते हैं, कहते हैं यार जर्मनी में देखो बड़ा अप्रेंटिस प्रोग्राम इज सो सक्सेसफुल। जर्मनी में देखो, देखिए, या तो मैं ऑस्ट्रेलिया में काफी साल था, यहाँ सब में इस जगह में अप्रेंटिस का जो दर्जा है, सोशल स्टेटस है, वो बड़ा इट्स वेरी गुड। कोई बोलता है कि मैं अप्रेंटिस प्लम्बर हूँ तो लोग उसको बड़े इज्जत से देखते हैं। कोई कहता है कि मैं अप्रेंटिस केमिस्ट हूँ तो पीपल कंसिडर हिम, गिव हिम रेस्पेक्ट, भाई ही इज इन अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किलिंग प्रोग्राम, यू नो ही इज गोइंग टू बिकम समबडी रियली बिग। तो ये जो रेस्पेक्ट है फॉर अप्रेंटिस जर्मनी में है, ऑस्ट्रेलिया में है, यहाँ पे भी हम लोग लाना चाहते हैं। और मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ 4-5 साल में ये जरूर होगा कि अप्रेंटिस का जो दर्जा है वो सोसाइटी में बहुत बढ़ेगा। But it is not all that. What is important is it beneficial to the small and medium industry? The answer is an emphatic yes. आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, मोटिवेशन आदमी का बढ़ेगा, और लोग लॉन्ग टर्म रिटेंशन इज अ पॉसिबिलिटी। इसके भी एग्जांपल्स मैंने दिया हुआ है, मैं आपको शेयर करता हूँ। बिफोर आई डू दैट, गवर्नमेंट का अप्रेंटिसशिप पोर्टल है, ये आपको मैं दे दूंगा, आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं कि क्या क्या है अप्रेंटिस पोर्टल में। You can inquire, you can consult us for help, and you can also register. But for registration, etc., you can take our guidance or the guidance of the third party aggregator. This is how the site looks. अगर आप login करेंगे तो ऐसे दिखेगा आपको site. How to get started, manuals हैं, सब कुछ instructions बड़े अच्छी तरह से दिया हुआ है on the portal. बाकी के लिंक्स भी मैं आपसे शेयर करूंगा आपके साथ, जैसे इंडस्ट्री यूजर मैनुअल है, कैंडिडेट यूजर मैनुअल है, पेमेंट रीइंबर्समेंट यूजर मैनुअल है, एक्सेट्रा। टाइम हो तो देख लीजिए, नहीं हो तो आपको हमारे जो एडवाइजर्स हैं उनके साथ बात करके आपका काम बड़ा आसानी से हो सकता है, बड़े आसानी से हो सकता है। तो ये जो अप्रेंटिस का लैंडस्केप है इसके बारे में मैंने दिया हुआ है। स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल है, सेंट्रल का क्या रोल है, ये मैं अभी डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। ये आपके लिए मैंने सिर्फ बताया है कि क्या इसके जुरिसडिक्शंस हैं, वो आपको मैं भेज दूंगा। Apprentice program, thanks to NSDC, it is taking a very big, it is taking a very big presence in our industry landscape. काफी लोगों का apprentice program शुरू हुआ है। Many companies have engaged with good apprentices. मैं सोचता हूँ for small and medium enterprise, this is a very good thing to start with. Not only because it gives financial assistance, but you don't have HR, बड़े छोटे कंपनी में बहुत सोफिस्टिकेटेड HR टीम्स नहीं रहते हैं, तो इसके लिए हम लोग का हेल्प लेकर, हम लोगों का हेल्प लेकर आप करिकुलम डिवाइस कर सकते हैं, करिकुलम एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ये सब आपको फैसिलिटी ऑफ ट्रेनिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग स्किल, ये is possible through the apprentice program. These are the companies who are already involved. You can see names of big companies, but small companies are also coming in. And इसमें contractor भी आ सकते हैं, paint contractor, if they are a good company, I mean they are employing more than 30-40 people and they are registered as per the
Companies Act, these people also can be considered for under this program as employers. एक 2-3 स्लाइड्स बिजनेस केस है. बिजनेस केस में इतना ही बता सकता हूं मैं. Because of apprentice program, many countries have found it to be very, very useful. Globally, productivity has improved by 68%. Motivation in UK has improved by 92%. Many countries have shown excellent retention rate by apprentices. The companies become very competitive. After this lockdown, many things will change, and you will have to be more competitive than before. You will have to be more productive than before, and you will have to get the right employees. This is a good time, ladies and gentlemen, for you all to consider the apprentice program. Basically, the work-based learning, जो WBL कहते हैं, यानी apprentice on the job training जो कहते हैं, वो रिक्रूटमेंट एंड एम्प्लॉयज रिटेंशन बहुत हो जाता है, उसमें फर्क हो जाता है. प्रोडक्टिविटी की वजह से कॉस्ट रिड्यूस होता है, एंड ट्रेन्ड एम्प्लॉयज नीड लेस सुपरविजन, और जो स्किल एंड नॉलेज इज अलाइन विद द इंडस्ट्री, यू नो, रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि डिजाइन आप ही करते हैं कोर्स, और हम लोगों के हेल्प से वो जो इंडस्ट्री अलाइनमेंट है कोर्सेज में वो आता है. और इसमें वेलफेयर, दोस टोटल कॉस्ट, whether it is welfare costs or wage returns, actually overall the cost for the company in the long run completely comes down. Has been proved time and again by all the companies and all the countries who have employed the apprentice program. मैंने 3-4 केसेस दिए हुए हैं, वो आप आराम से you can see it, how they have benefited in the second year itself. एक क्लासिक मॉल्स का एक केस है, फूड वर्ल्ड बैंगलोर का एक केस है, लेमन ट्री गुड़गांव का केस है, डॉक्टर रेड्डीज का केस. उन्होंने तो बेनिफिट पर अप्रेंटिस उनका तो 50% का कुछ रिपोर्ट है. बेसिकली क्या कहना चाहता हूं मैं कि इट्स अ विन-विन अपॉर्चुनिटी. व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, लेडीज एंड जेंटलमैन, इज apprentice program is a win-win opportunity. I know it sounds, arey yaar, this is too much of work. Don't worry about it. There is help provided by the third party aggregator as well as by the council in making it easier for you to implement this program. There are a lot of cost saving analysis. What I have done is given you a list of contact information. I will provide our information also to you and people whom you can contact, and the third party aggregator, Mr. Visham's contact also. You can get in touch with us if any of you are interested, and I would suggest you take interest in this. It is to your own benefit. एक flyer हमने बनाया है जो हम आपको सब distribute करेंगे. We'll print it out with permission of Mr. Manish in the Paint Vision magazine also, so that you are all aware of what are the benefits and how you can go about it. Yes, sir, thank you. Sir. You are, sir, no need to take permission. Sir, you just Okay. command. Right. Thank you very much, Manish Saab, Milan Saab. I have finished my presentation. I'll open it for discussions, and Okay. I hope I was trying to make it as simple as possible. Please pardon me if I've used some jargons, but this is how the act is. कोई भी act होता है उसमें थोड़ा बहुत jargon आ ही जाता है. But I have tried to explain all the points. So I'm very happy with the, and I can see on the call people like Megan and all. They are also very good training providers, and you have an excellent team of people here who can also help us do this, implement this program. Thank you very much, Milan Saab, and thank you very much, Manish Saab. Thank you very much. Thank you very much, sir. जैसा कि अपनी परंपरा रही है और उस परंपरा का ध्यान में रखते हुए एक बार अप्लॉज होना चाहिए जगदीश आचार्य जी के लिए, प्लीज. ओके, आज की प्रेजेंटेशन जगदीश आचार्य जी द्वारा ली गई है और स्किल डेवलपमेंट के ऊपर आज ये पूरा चैप्टर था. अभी किसी को भी किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, कोई जानकारी कुछ लेना चाहे तो प्लीज रेज योर हैंड और हम उनकी जानकारी
जी बोलना, कौन बोलना चाह रहे हैं, बोलिए सर प्लीज। अच्छा मनीष सर, मनीष एक जी। मैं बिफोर वी स्टार्ट एक बात बताना चाहता हूँ मैं, सॉरी। जी सर, नहीं प्लीज। सी पेंट एंड कोटिंग स्किल काउंसिल डज अ लॉट ऑफ थिंग्स, काफी हम काम करते हैं। नैप्स जो अभी जिसके बारे में मैंने बताया, प्रेजेंटेशन दिया, एक हमारा वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज। जी बाकी एक्टिविटीज हैं, वी डू अ स्किल गैप स्टडी एंड वी फॉर्मुलेट। अभी हमारे पास 20 जॉब रोल्स का इंफॉर्मेशन है, ओके और ये जो 20 जॉब रोल्स हैं ये हम सब के लिए एक्चुअली वो साइट में है, इट्स अ पब्लिक इंफॉर्मेशन, यू कैन गो ऑन टू द साइट। मैन्युफैक्चरिंग के लिए 11 हैं, एप्लीकेशन के 9 हैं। ये जो जॉब रोल्स हैं ये पूरे क्वालिफिकेशन पैक्स के साथ आया हुआ है, वो आपके लिए अवेलेबल है। तो हम लोग वो प्रिपेयर दोस जॉब रोल्स। तो स्किल गैप हुआ, जॉब रोल बनाया, फिर जॉब रोल के बाद वी अंडरटेक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स थ्रू ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स थ्रू द गवर्नमेंट सपोर्ट। इसको शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कहते हैं। कोई स्किल मिशन, आंध्रा स्किल मिशन लीजिए या कोई भी स्टेट स्किल मिशन लीजिए, उनको कुछ प्रोग्राम करना होता है तो वो बोलते हैं कि ये जॉब रोल में हमें प्रोग्राम के लिए हम सपोर्ट कर सकते हैं। अगर प्लेसमेंट की गारंटी हो तो हम लोग ये प्रोग्राम करते हैं। तो ये जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं, इसके लिए जो करिकुलम है ये हम प्रोवाइड कर सकते हैं। ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं हमारे साथ, जिनके बारे में जिनका इंफॉर्मेशन हमारे पास है, वी कैन शेयर दैट विद यू। फिर एक गवर्नमेंट का स्कीम है जो रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। अगर कोई पेंटर हो या कोई भी प्रोडक्शन में भी हो, जिसके बारे में आप कहते हैं कि भाई इसकी तो स्किल तो जानता है, वी हैव टू रिकॉग्नाइज हिज स्किल, क्योंकि इसके पास सर्टिफिकेट नहीं है बट ही इज अ गुड पेंटर। तो गवर्नमेंट ने रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग करके एक स्कीम शुरू किया था, जिससे भी रिकॉग्नाइज द पर्सन्स प्रायर लर्निंग, assess him, give him a short orientation program and give him a certificate। ये भी प्रोग्राम रेडी है। नॉर्मली गवर्नमेंट के स्कीम्स आते हैं टू सपोर्ट दिस, लेकिन यू कैन ऑल्सो डू ऑन अ फी बेस्ड बेसिस कि भाई मुझे इसको सर्टिफाई करना है, या पेंटर्स, हमारे पेंटर्स हैं, वी वांट टू सर्टिफाई दैट, ये भी आप कर सकते हैं। तो ऐसे 3-4 प्रोग्राम हमारे पास है, और इसके बारे में भी एक फ्लायर बना के मैं आपको सबको भेज सकते हैं। थैंक यू। सॉरी सर, आमतौर पे एमएसएमई के अंदर ना ये एक प्रॉब्लम रहती है कि एमएनसी जितनी हैं वो तो अपने पेंटर्स को और सर्टिफाइड करके घरों के अंदर पेंट करने के लिए भेज भी रहे हैं, जैसे बर्जर कर रहे हैं, एशियन कर रहे हैं, काफी लोगों ने ये शुरू कर दिया है। तो ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए कि आप अपनी कंपनी के थ्रू सर्टिफाइड पेंटर्स को आप अपॉइंट कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका अपने ब्रांड की वैल्यू बनेगी और वो आप ही का पेंट जाकर वहां लगाएंगे। ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। सतीश जी एक क्वेश्चन लेना चाहते हैं अशोका पेंट से, बोलिए सतीश जी। हाँ जी, आचार्य जी नमस्ते, मैं हैदराबाद से बोल रहा हूँ सतीश। सर अभी पेंटर को अगर सर्टिफाई करते तो उनका कुछ कोर्स होता है क्या, कुछ पीरियड ऑफ कोर्स होता है अगर रिकॉग्नाइजेशन सर्टिफिकेट अगर उसको मिले? हाँ, समझ लीजिए एक पेंटर है जिसके पास बहुत एक्सपीरियंस है, तो गवर्नमेंट में एक स्कीम है जिससे हम लोग रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग कहते हैं। तो उसमें हमारा क्वेश्चन बैंक रहता है और हमारा एसेसर्स रहते हैं, और हम लोग एक, अगर आप मान लीजिए, आई एम गिव यू एन एग्जांपल, अगर आपके पास 50 पेंटर हैं जिनको आप सर्टिफाई करना चाहते हैं, तो आप आएंगे, बोलेंगे साहब मेरे को ये जो पेंटर्स हैं हमारे, उनको एसेस करके मुझे सर्टिफाई करना है। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट चॉइस हम लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट का कुछ स्कीम है क्या। अगर आंध्र प्रदेश में कोई रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग की स्कीम गवर्नमेंट में करते हैं, अगर है तो हम लोग उसके थ्रू जाना पसंद करेंगे, क्योंकि उसमें आपको कोई खर्चा नहीं आता है, थोड़ा बहुत आएगा टू मोबिलाइज एंड टू हैव अ गेट टुगेदर, बट द गवर्नमेंट सपोर्ट्स द पेंटर, दे गिव 500 रुपीज टू हिम, उसका इंश्योरेंस करते हैं और उसके लिए एक सर्टिफिकेट भी बनाते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है, आपका क्वेश्चन ट्रेनिंग का था, तो वी टेक दैट पर्सन, और पहले तो एक 12 आवर्स का ओरिएंटेशन प्रोग्राम रहता है कि हाउ डू यू बिहेव, जरा सॉफ्ट स्किल्स भी बताते हैं, क्योंकि पेंटर्स को क्या है ना, कारीगरी में उतना उसकी
कमियां नहीं रहती हैं जितना उसके सॉफ्ट स्किल्स में Behavior. है। तो वो हाँ Okay. बिहेवियर, तो सॉफ्ट स्किल्स का भी एक हम लोग लेते हैं ओरिएंटेशन प्रोग्राम। और फिर हमारे जो क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड्स के टीम है, वो एक क्वेश्चन बैंक बना के एसएसएस को देते हैं, और ये एसएसआर उसको एसेस करता है। उसमें अगर वो 75% से ज्यादा मिलता है तो उसको हम लोग सर्टिफाई करते हैं। नॉर्मली हमने देखा है कि 90% जो पेंटर्स काम करते हैं वो पास होते हैं, क्योंकि उनका तो पेशा ही है पेंट करना। दे नो इट वेरी वेल, दे मे लैक इन सर्टेन सॉफ्ट स्किल्स। सो एंड यू कैन इमेजिन, हमने तमिलनाडु में किया था साहब। अभी भी मौका है, जिनके पास तमिलनाडु में पेंटर्स का है, अप्रोच कीजिए। गवर्नमेंट स्टेट मिशन के तरफ से हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं और वो हम आपके दे सकते हैं। सो क्या है कि इसमें पेंटर्स इतने खुश होते हैं आफ्टर द सर्टिफिकेट। और ये निपॉन के साथ हमने किया था, और उन्होंने एक थोड़ा ग्रेजुएशन सेरेमनी करके भी किया था। पेंटर्स का एक मोटिवेशन मैं क्या बताऊं आपको, एक लेवल से कई ऊंचे लेवल पर गया, और वो कहने लगा कि मेरे को कोई अल्टीमेटली रिकॉग्नाइज कर रहा है। तो ये रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, ये गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा स्कीम है। तो इसके बारे में अगर कुछ और डिटेल्स जानना चाहते हैं तो हम लोग जरूर आपसे बात कर सकते हैं। Sure, thank you, sir. और स्टेट गवर्नमेंट का भी कुछ इन्वॉल्वमेंट रहता है सर इसमें? दो तरह के स्कीम्स होते हैं। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम्स रहते हैं, और ये तो पीएम का प्रधानमंत्री कौशल योजना के अंडर में आता है, PMKY स्कीम्स। और दूसरे स्टेट स्किल मिशन के भी कुछ स्किल्स मिशन प्रोग्राम्स रहते हैं। उसमें दो तरह के प्रोग्राम रहते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कोर्सेज, और ये जो मैंने आपको बताया रिकॉग्निशन प्रायर लर्निंग। स्टेट स्किल्स के ज्यादातर स्टेट मिशंस के शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग ही रहता है, आरपीएल बहुत कम आते हैं। जैसे तमिलनाडु में आया था, बाकी के स्टेट नहीं करते। लेकिन आंसर योर क्वेश्चन, स्टेट स्किल एज वेल एज नेशनल स्किल डेवलपमेंट दोनों के प्रोग्राम्स आते हैं। अच्छा। और उसके अलावा अगर आप करना चाहते हैं फी बेस्ड, हाँ सर, वो भी आप हाँ कर सर। सकते हैं, जिसके लिए हम मतलब मेरा ऑर्गेनाइजेशन से मैं करूं, सॉरी, हाँ जी, मेरा ऑर्गेनाइजेशन से मैं कर सकता हूँ? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सर सेम आप अपनी सर्टिफिकेट कंपनी उसको के मिलेगा? नाम से, जैसे आपका ब्रांड मार्केट में है, तो आप जैसे आपने हाँ। देखा होगा इजी होम करके, और ये एशियन कंपनीज भी काफी, ये एक बहुत अच्छा चैप्टर है एक्चुअली। और जितनी भी कंपनीज अभी घरों के अंदर जाके पेंट कर रही हैं, जैसे बजर भी कर रही है, एशियन ने अपना खोला हुआ है, और भी बहुत सारी कंपनीज है, वो सब लोग घर में जाके वो कॉन्ट्रैक्ट लेके उनके घरों को पेंट करवा रहे हैं। तो एमएसएमई कहीं ना कहीं इसमें पीछे छूट रहा था। तो मैं तो बड़ा थैंक्स करूंगा जगदीश आचार्य सर का, कि उन्होंने हमारे को अपॉर्चुनिटी दिखाई है कि वी कैन डू दिस थिंग ऑन आवर ओन। आप अपनी एक टीम बनाए, 4-5-6 पेंटर्स की अपनी एक टीम बनाए, अपने पूरे डीलर्स नेटवर्क के अंदर उस टीम के बारे में जानकारी दें। जानकारी देने के बाद में वहां पर आप सबको बोले कि yes, what are the plans in Uttar Pradesh for the skill council? Yeah, I'll come to that in a minute. तो मनीष साहब आप कुछ कह रहे थे, कंप्लीट कीजिए। सर मैं ये कह रहा हूँ कि आप सभी अपने कंपनी के थ्रू एक टीम बना सकते हैं 4-5 लोगों की। वो 4-5 लोगों की टीम को आप जैसे अपने डीलर्स को अप्रोच करेंगे, उनको बताइए कि हमारे पास ऐसी टीम है, जिसमें डीलर को कट दीजिए कि आप अगर हमारे को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं तो डीलर को भी आपके उसमें परसेंटेज दीजिए, कि डीलर के थ्रू अगर आपको कोई ऐसी कोई कॉन्ट्रैक्ट आता है तो किसी के भी घर को पेंट करने का, किसी बिल्डिंग को पेंट करने का, किसी होटल को, हॉस्पिटल को, इस तरह से आप अच्छी अर्निंग कर सकते हो। नंबर 1। नंबर 2, सर्टिफाइड पेंटर्स हैं आपके पास, आपकी कंपनी के नाम से जाते हैं, आपकी कंपनी की गुडविल बढ़ती है। आपके पास जो सर्टिफाइड पेंटर्स हैं उसके वजह से आपके ब्रांड की वैल्यू बढ़ती है। वो प्रॉपर वे से आपके पेंट को एग्जीक्यूट करेंगे। होता क्या, कई बारी जो हमने नॉर्मली देखा है इंडस्ट्री के अंदर, शॉपकीपर्स जो भी प्रोडक्ट बेचते हैं उसमें पेंटर्स को कट मिलता है, और ज्यादातर पेंटर्स आपके प्रोडक्ट को इसलिए रिजेक्ट कर देते हैं बिकॉज ही इज नॉट गेटिंग समथिंग इन योर प्रोडक्ट। तो अगर आप अपने सर्टिफाइड पेंटर्स को वहां पे भेजेंगे और वो अगर आपके शॉपकीपर्स के थ्रू काम करेंगे, एक तो आपका बिजनेस बढ़ा, एक आपकी ब्रांडिंग बढ़ी, एक आपकी ब्रांडिंग भी हुआ। तो ये मैं तो ये कहूंगा कि ये हर एक व्यक्ति को, हर एक इंडस्ट्री को 2-3-4 पेंटर्स, सर्टिफाइड पेंटर्स अपने एरिया के ये करवाने ही चाहिए। और एक बात ये है कि मैं आपको बताऊं, मैं एशियन पेंट्स में मैं 37 इयर्स था,
तो मैं एशियन पेंट्स का जो स्किलिंग प्रोग्राम में भी इन्वॉल्व था, मैं लास्ट में जब CSR देखता था। अच्छा, एशियन पेंट का जो पेंटर है उसको एशियन पेंट का सर्टिफिकेट ले जाता है तो लोग पहचानते हैं, हाँ अरे यार एशियन पेंट बड़ी कंपनी है। हाँ। लेकिन आप सोचिए, अगर हम स्मॉल एंड मीडियम कंपनी वाले जाएंगे, अगर वो सर्टिफिकेट में गवर्नमेंट का अशोक स्तंभ का सर्टिफिकेट है वो, तो उसका हाँ। वैल्यू और एशियन पेंट का वैल्यू में कोई अंतर नहीं है। मतलब मेरा कहना ये है कि बल्कि ज्यादा होगा सर, वो ये ज्यादा रहेगा होगा, कि आप क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड है एंड दिस कंपनी द MSME अंडर होम दे आर वर्किंग, और उसका जो ब्रांडिंग लेके जा रहे हैं वो अपने आप में उनकी अपनी ब्रांडिंग कर देता है MSME की। बिल्कुल। ये आया वही बोला। और एक बात है कि जैसे आपने बहुत अच्छी बात, ये जो असेसमेंट स्किल काउंसिल करता है वो एज पर द नेशनल स्किल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क का असेसमेंट है, तो अच्छा। इसका वैल्यू ज्यादा है और वैल्यू होगा अभी आने वाले ईयर्स सालों में इसका वैल्यू जरूर बढ़ेगा। तो इसके बारे, और साहब मैंने उत्तर प्रदेश का किसी ने पूछा था, देखिए अभी थैंक यू तो थैंक यू। कुछ टारगेट्स हमारे पास थे उत्तर प्रदेश के लिए भी, लेकिन ये लॉकडाउन की वजह से अभी नहीं है। लेकिन आप हमारे से अलग से संपर्क कीजिए, जो भी अगर स्कीम है। हमारे आज टीम में रीजनल मैनेजर मिस सिमोना तलवार भी हैं, और उनसे मैं आपका कांटेक्ट करवाऊंगा और वो बताएंगी आपको कि क्या क्या हम कर सकते हैं उत्तर प्रदेश में, अगर कुछ रिक्वायरमेंट हो और कैसे हम लोग आगे जा सकते हैं। हाँ जी स्वपन जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं, पूछिए सर। स्वपन जी। हाँ हाँ जी, हेलो यस सर। सर, मैं ये जानना चाहता जैसे जो एशियन पेंट्स में सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं उसमें हम भी डील करते हैं। अगर हम अपने पेंटर्स को स्किल्स और ये कोटिंग्स के अंडर में अगर हम करते हैं तो नेचुरल सी बात है कि मतलब बिजनेस थोड़ा बूस्ट अप होगा उससे। नहीं, ऐसा तो नहीं है। देखिए मैं आपको एक एक किसी कंपनी के बारे में नहीं, मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात कहना चाहता हूँ। देखिए, वेदर एशियन पेंट का सर्टिफिकेट हो या NSDC का सर्टिफिकेट हो या कोई भी सर्टिफिकेट हो, सर्टिफिकेट का वैल्यू जब होता है तब जब वो पेंटर इज रियली अ गुड पेंटर, उसका सर्टिफिकेट का वैल्यू उसके वजह से बढ़ता है। सर्टिफिकेट की वजह से पेंटर नहीं बनता है, पेंटर की वजह से सर्टिफिकेट का वैल्यू बढ़ती है। मैं क्या कहता हूँ, एट द एंड ऑफ द डे अगर मैं आपको कहूँ कि देखिए ये जो पेंटर है असेसमेंट करके इसको 75% मिला है, तो इसका एक वैल्यू रहता है। अगर कोई और पेंटर हो जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं हो, जिसके बारे में मैं असेसमेंट के बारे में कुछ बोल नहीं सकता हूँ, तो एज अ बायर, एज अ कंज्यूमर, एज अ हाउस होल्डर, आई वुड प्रिफर द वन हु इज गॉट असेस्ड। अच्छा, उधर अगर वो उसका असेसमेंट एशियन पेंट से भी हो या आपसे भी हो, कोई बात नहीं, इट इज द सेम। एक एडवांटेज ये है कि असेसमेंट एशियन पेंट के जो पेंटर्स हैं वो गवर्नमेंट के सिस्टम से नहीं आते हैं, दो दे आर आल्सो गिवन NSDC सर्टिफिकेट। जो NSDC पेंट और कोटिंग स्किल सेक्टर के जो पेंटर्स आते हैं वो गवर्नमेंट स्कीम से आते हैं, तो देयर इज अ डिफरेंस। बट आई वुड रेस्पेक्ट एनी पेंटर हु कम्स आइदर फ्रॉम एशियन पेंट स्किलिंग or from, so long as he's certified. See, the important thing is about certificate, because certificate tells you whether the painter has passed or not. Swapan, I hope I have clarified, na? Sir, can I Swapan, ask you one question? Sir, can I ask you one question? My name is NS Pradhan. Yes, sir. Can you hear me? Yes, Mr. Pradhan. Hello. Can you hear me, sir? Yes, Yes, sir. Mr. NS Pradhan. Can you hear? We can hear you, please. Right. 1 minute, please. Sir, I am in the paint industry for more than 5 decades now. My retired person. I started sir. with Asian Paints also. I know Hello. quite a few people there. You see, so far as the painting contracts are concerned, is industrial. There is a certification course carried by NACE and SSPC, that is National Association of Corrosion Engineers, and surface protective
surface fields. At the moment, I am a professor in paint technology course in Mumbai for the graduate and postgraduate students. They are always asking me, sir, can we have admission in that course so that if I get the certificate of this course, it is easier for me to get a job. Can you throw, are you aware of this thing? The other thing is about the decorative coating. Decorative coatings, there are painters all around, and good old painters that used to be recognized by their skills. And I know quite a few painters. I work for in for about 2 decades. So can you throw light on this particular aspect? Yeah, let me first talk about Did you the hear me? SPI. Yeah. Let me first talk about Pradhan sir about Did you hear? SPICM and the national. Yes, clear sir, clear. It's अब clear. आंसर दे रहे हैं सर, जगदीश सर हाँ. आंसर दे रहे हैं सर, प्रधान साहब. तब जो corrosion coating और इसके जो 2 कोर्सेज के बारे में आपने बात किया प्रधान सर, they are very highly regarded courses. In fact, I would say that they are some of the best courses in India which people should be going through that course. तो उसके लिए if somebody is interested, they should really go through that course, which is these are excellent courses. Or we don't have such courses, but we support such programs. Acharya sir, can I add something to this? Yeah. Megan, sure. Pradhan sir, good afternoon. Good afternoon. This is Megan Manjarekar myself. I am SSPC level 2 inspector. Very good. Very good. See, this Nice to SSPC meet you, NES, NES, as well as there's one more called Prozio, which is a European Swedish organization. They have their own certification program. And that is more focused on corrosion and application of paints. Usually each level is 1 week with them, 5 days. Correct. And they're quite expensive actually. Per level you have to spend something like 1.3, 1.4 lakh rupees. And it's increasing every time because this dollar is going up. Okay. Something on the similar lines, we are on the verge of designing a course, but that is industrial protective coating course, which will be 3 days into 5 levels, something like that. Correct. Okay. So this I'll talk to sir, Jagdish I have and I spent think... my... Yes, sir, continue. Please continue. Yeah, Pradhan sir, continue. Can I continue? Now, yes, sir, yes. I will able, can I talk now? Yes, sure. Please. Am I able to you, sir? Yes, please, sir. Now, so far as the SSPC is concerned and is concerned, you see, SSPC is, if you are aware, Manjarekar sir, it is an offshoot of NSE that has been managed by Professor Khanna of IIT. I think you must be aware of this fact. No. That is one sec. Let me one sec. Let me correct you. This SSPC is not the original SSPC what Khanna is running. Hello, I'm not able to hear you. Dr. Khanna's SSPC is not the actual SSPC. Actual SSPC is in Pittsburgh, USA. Hello. Okay. Hello. Can you hear? Can you hear? Hello. Hello. I'm not able to hear you. Sir, maybe he's not able to hear you, but मैं एक बात कहना चाहूँगा मंजरेकर सर. अभी जो बात ये कह रहे हैं, अगर जैसे आप बता रहे हैं इंडस्ट्रियल प्रोटेक्टिव कोटिंग्स की प्रॉपर ट्रेनिंग के लिए, तो आचार्य सर हम एक आफ्टर दिस सेशन एक बात इस पे करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा लंबा है, बहुत बड़ा टॉपिक है और इसमें हम लोगों को काम करने की बहुत जरूरत है. एंड जब तक ये थोड़ा सा रहता है, मैं क्वेश्चंस और भी लोगों के आ रहे हैं क्योंकि टाइम की हमारे बहुत लिमिटेशन है, तो मैं बाकी क्वेश्चन ले लेता हूँ. इसके अलावा कोई बात रहती है सर तो हम बाद में डिस्कस करते हैं, प्लीज. ओके फाइन. ओके. डॉक्टर गौरव श्रीवास्तव, प्लीज अपने क्वेश्चन पूछिए सर. मंजीत जी आपका सारा इसके Manjare, I got one question. प्रधान सर 1 minute. हाँ जी बोलिए सर, बोलिए. Manjare,
प्रधान सर आपकी वॉइस ना ब्रेक होते हुए आ रही है, we can't hear you Like if you properly. can give me your contact number and this thing, because I'm a professor and MTech in my college, and they are asking me about the placement and a suitable course. Okay, मैं दे sir. दूंगा सर, Okay. will do, sir. Yeah. कोई बात नहीं kindly प्रधान do. सर, आप हमारे पेन विजन के ग्रुप में हैं क्या? मैं this link is given to me by Mukund Hulladkar. Okay. You can take my number from Mukundji also. Okay, sir. So you Thank can you. you can also join us. We have a group name of Paint Vision. अभी आप अपना Yeah, you चैट के can अंदर make अपना it. नंबर ड्रॉप कर दीजिए, मैं आपको ऐड कर दूंगा उसमें. You can get Okay. You can communicate with me. I will give you my identity as well as my this thing. You know. Yes sir, आप चैट के अंदर अपना नंबर ड्रॉप कर दीजिए सर. इसी सेशन की चैट में अपना नंबर ड्रॉप कर दीजिए सर. Okay. Okay, now we are going to Dr. Gaurav Srivastava. Gaurav जी पूछिए ना कुछ. आचार्य सर, मेरी सिर्फ 2 क्वेरीज हैं. ये किसी तरीके का कोई क्वेश्चन नहीं है, मेरी कुछ अपना कुछ इंटरेस्ट का क्वेरीज हैं. जो ये स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसके अंदर रॉ मटेरियल डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए भी कोई प्रोविजन है अप्रेंटिसशिप का? हाँ, सी अप्रेंटिस का प्रोग्राम जो है वो हम you have to just qualify to be as an employer. You have to meet those criteria. ठीक है, मैं आपको व्हाट्सएप करता हूँ बिल इसका. Sector skill. You can, as an employer, we can guide you into that. There is no problem. In other words, Dr. साहब, आपके लिए भी है apprentice program. Simple. Okay. And second one is क्या skill development जो council है, वो एक्सटर्नल ट्रेनिंग सेंटर अगर कोई अपना इस्टेब्लिश करना चाहता है इस तरीके की स्किल डेवलप करवाने के लिए, तो क्या उसमें सपोर्ट करती है? सी, एक तो गवर्नमेंट डजंट प्रोवाइड एनी कैपेक्स एक्सपेंसेस और वी डोंट हैव द मनी टू प्रोवाइड एनी एक्सपेंसेस. लेकिन हैविंग सेड दैट, आई विल टेल यू, सपोज इफ देयर इज अ गुड ट्रेनिंग, क्योंकि पेंट ट्रेनिंग में थोड़ा इन्वेस्टमेंट रहता है, यू नो, पेंट ट्रेनिंग सेंटर का थोड़ा इन्वेस्टमेंट ज्यादा रहता है, उसके वजह से लोग ट्रेनिंग पार्टनर्स बहुत कम मिलते हैं हमें जो पेंट ट्रेनिंग करते हैं. लेकिन फिर भी मैंने देखा है कि डेकोरेटिव पेंट कंपनीज, कुछ कंपनीज साउथ में स्पेशली अच्छे ट्रेनिंग सेंटर्स करते हैं. और अगर आपको किसी को इंटरेस्ट है कि अच्छा ट्रेनिंग बनाने के लिए, गवर्नमेंट विल नॉट गिव यू एनी मनी, बट व्हाट विल हैपन इज वंस द ट्रेनिंग सेंटर इज रिकॉग्नाइज्ड, then if we get some training programs under the government scheme, the government is able to compensate quite well for the running expenses of the program, you know. Okay. So the initial capex has to have come from the non-government organizations. No, that I understand that government is not providing any capital money for establishing a training center. But if there is a training center, it can be recognized by if it is qualifying all the parameters. Yeah, and we will guide you there. We will tell you what are the parameters which you should have to establish a training program, a training center which is accredited by NSDC. We can do that. Okay. And once it is accredited, then if you are doing some programs under the government scheme, then the government also pays for those programs. Okay. One more thing I want to mention here, Manisha, is that in continuation with Pradhan Saab's question, but to tell everyone, we also have in our 9 job roles and 11 job roles for application, very good courses on protective and industrial, protective and marine coating job role application and industrial paint application job roles. In fact, these job roles are available for short-term training courses of 40 hours. So that is already available with us. And in that, people like Mr. Megan Mazekar have also contributed. So we have taken it from subject domain experts, subject matter experts. So we have got good programs, good job roles for that also. Okay. आचार्य सर, एक और क्वेरी था मेरा, जैसा कि आपने बताया कि हमारे एक सेकंड ले रहा हूँ गौरव जी आपका, एक सेकंड, क्योंकि अभी लोग हैं यहाँ पे, तो मैं एक छोटी सी बात बोलना चाह रहा हूँ. अभी भी हमारे ग्रुप्स में कई लोग ऐसे हैं, अभी जो सेशन चल रहा है उसमें भी कई लोग ऐसे हैं जो हमारे पेन विजन के ग्रुप्स के अंदर नहीं है. तो अगर कोई हमारे पेन विजन के ग्रुप के अंदर ऐड होना चाहे, हमारे लगभग 7 ग्रुप्स ऑफ व्हाट्सएप वी आर रनिंग, और कोई अगर ऐड होना चाहे उसमें, तो अपना नंबर अभी आप चैट ग्रुप जो चल रहा है उसमें ड्रॉप कर सकते हैं. वी विल ऐड यू इन दैट. और एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, अपनी थोड़ी सी ब्रीफिंग जरूर दे दें,
कि आपकी कंपनी का नाम क्या है और आपका नाम क्या है अपने मोबाइल नंबर के साथ। गौरव जी प्लीज। सर मैं ही ब्रीफिंग दे देता हूँ। मैं डॉक्टर गौरव श्रीवास्तव, अरे सर उनके लिए बोल रहा हूँ जिन्होंने ग्रुप में, नहीं नहीं उनके लिए बोल रहा हूँ जिन्होंने व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड होना है। सर आप तो मालिक हो हमारे। नहीं सर, आप क्वेश्चन पूछे सर, आपका क्वेश्चन। मेरा सिर्फ सर से एक क्वेरी यही था कि जैसा सर अभी आपने बोला कि हम जैसे लोगों के लिए भी कुछ स्किल्स के प्रोविजन है, कुछ डेवलपमेंट के प्रोविजंस हैं, सो हम इस तरीके की स्किल्स के डेवलपमेंट के लिए किससे कांटेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से इनरोल हो सकते हैं और वो किस तरीके की स्किल्स हैं? सी एक तो डॉक्टर साहब वी विल सेपरेटली ऑफलाइन मैं और आप बात कर लेंगे, आई विल अंडरस्टैंड इट बेटर and then we will take it to the next level. But to answer your question on NAPS is for every employer who meets. उसमें कोई sectorial differences नहीं है, लेकिन जो skills आप पूछ रहे हैं मुझे जरा देखना पड़ेगा। जैसे lab technician अगर common है तो वो कोर्स तो हमारे पास है, लेकिन कुछ और स्पेसिफिक प्रोडक्शन केमिस्ट का कोर्स हमारे पास है। वो तो रॉ मटेरियल प्रोडक्शन हो या पेंट प्रोडक्शन हो, इट्स सिमिलर है। तो ये सब चीज हम लोग कॉमन है, वो शेयर कर सकते हैं, लेकिन बाकी के जो स्पेसिफिक है वो हम अलग से डिस्कस कर लें। ओके गवर्नमेंट के पास 30 सेक्टर्स हैं साहब, 30 सेक्टर स्किल्स हैं, तो आपको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से जरूर मिलेगा जो अप्रोप्रिएट है। नहीं सर, बिल्कुल सही बात है। मैंने इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा कि हमारे जैसे लोगों का भी कुछ डेवलपमेंट फर्दर हो तो वो बहुत अच्छी बात है। हम लोग कुछ नई स्किल्स एक्वायर करें। जी मनीष जी एक्चुअली बेसिकली क्या है, स्किल डेवलपमेंट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है उसके अंतर्गत ये चीज आती है कि जो भी व्यक्ति जिसके पास स्किल है या अनस्किल्ड व्यक्ति है उसको अर्निंग के लिए प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट सर्टिफाई कर रही है कि आप अगर किसी भी जगह पर जाते हो, अगर आप ऑल ओवर वर्ल्ड किसी बड़ी कंपनी में जाते हो, देखिए आज के समय में जितने भी पेंटर्स हैं या जितने भी लेबर की मैं बात करूं या जो भी एम्प्लॉइज हैं, कई लोगों के पास में सिर्फ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, बहुत जबरदस्त प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। लाइक आचार्य सर ने बोला कि कोई व्यक्ति 30-30 साल से पेंटिंग का जॉब कर रहे हैं, 35-35 साल से कर रहे हैं, 25-25 साल से पेंटिंग जॉब कर रहे हैं, बट दे कांट वर्क इन एमएनसीज, बट दे कांट वर्क इन एनी बिग कंपनी बिकॉज उनके पास कोई पेपर पे सर्टिफिकेशन नहीं है। स्किल डेवलपमेंट जो गवर्नमेंट की तरफ से ये एक है, उसमें आपको सर्टिफाई किया जाएगा आपके जितने भी पेंटर्स हैं या इस तरह की जो अनस्किल्ड या अनरिकग्नाइज्ड चीजें हैं, जैसे प्लम्बर है, जैसे पेंटर है, ये घरों में जो आम चीज, इलेक्ट्रिशियन है, ये सब लोग जानते हैं, बाप दादाओं से करते हुए आ रहे हैं और आगे चलते जा रहे हैं। इनके पास कोई ट्रेनिंग, थ्योरिकल ट्रेनिंग नहीं है, इनके पास कोई ऐसा कोई डिप्लोमा होल्डर नहीं है कोई लोग, लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ी स्किल है। अब इस स्किल को आगे डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्किल डेवलपमेंट का एक प्रोग्राम शुरू किया था और इसके लिए अभी हमारे साथ जो हम लोग पेंट इंडस्ट्री में जुड़े हैं, तो पेंट इंडस्ट्री के अंदर हम लोग ये सर्टिफिकेशन कर पाए और अपने पेंटर्स को सर्टिफाई कर सके ताकि वो बड़ी बड़ी कंपनी में जाके अपने आप को अपना काम ले सकें। और आप एज एमएसएमई आप बड़ी कंपनीज में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर आप अपनी होल्डिंग कर सके, आप वहां पे जाके अपना शेयर क्लेम कर सके कि यस वी आर आल्सो देयर। ये है स्किल डेवलपमेंट का मेन पर्पस। क्यों सर? मैं ऐड कर सकता हूं, आपने बहुत अच्छी तरह से बताया साहब। एक और एक ऐड करूंगा, अगर अप्रेंटिस प्रोग्राम जो अगर हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, वो जो अप्रेंटिस है उसका जो क्वालिटी है और जो एमएनसी में जो बैठा हुआ है उसका क्वालिटी से उसमें कोई अंतर नहीं आए। द रीजन इज ये जो इनपुट दिया जाता है उसके लिए ये हमने प्रिपेयर किया हुआ है एज पर द क्वालिटी क्वालिफिकेशन पैक, बहुत ध्यान दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ क्या क्या उसके परफॉर्मेंस क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या क्या इसके नॉलेज कॉम्पिटेंस होना चाहिए। तो ये सब आपको फ्रीली मिल रहा है टू ट्रेन अ पर्सन। I would say a good apprentice in a small and medium company will be as good as a good employee in a big company. Exactly, and in fact, he might even do better. मनीष जी, मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था। जी आलोक जी बोलिए सर प्लीज। जगदीश सर बुरा मत मानिएगा, पर आपका जो पूरा फोकस है वो डेकोरेटिव पे और इस पे ज्यादा है, पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ सर, स्किल इंडिया में आप अगर फोकस देते हैं इंडस्ट्रियल पे, अगर आप सेक्टर आइडेंटिफाई करते हैं, कंस्ट्रक्शन हो गया, कोटिंग सेक्टर्स हो गया, रोड मार्किंग वाला सेक्टर्स हो गया, या आपने मरीन का बताया है, या जो वाटर प्रूफिंग और कंस्ट्रक्शन केमिकल्स में जो सेक्टर्स में अगर आपने स्किल दिया तो वहां पे इतना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है और वहां एक्सपर्टीज की जरूरत है सर।
सर आचार्य जी ने, आलोक जी बताया कि 30 ऐसे सेक्टर है, 30, ये सिर्फ डेकोरेटिव की बात नहीं है। हाँ, लेकिन एक मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, सॉरी आपको लगा होगा कि मैं डेकोरेटिव के बारे में बात करता हूँ, वो ऐसा नहीं है। क्या है कि अनफॉर्चुनेटली ये जो डेकोरेटिव सेगमेंट है और जिसमें पेंटर्स, असिस्टेंट पेंटर, डेकोरेटर है, डेकोरेटिव पेंटर, ये नंबर में सबसे ज्यादा है, इसलिए उसका बात जिक्र होता है। लेकिन अगर हम हमारे जॉब्स क्वालिफिकेशन पैक्स देखेंगे जो पेंट एंड कोटिंग स्किल काउंसिल ने बनाया है, उसमें इंडस्ट्रियल पेंटर का है, प्रोटेक्टिव एंड मरीन पेंटर का है, उसमें लेबोरेटरी टेक्नीशियन का है, उसमें बेसिकली जो भी आप कहेंगे इन टर्म्स ऑफ जो आप कहते हैं स्पेशलाइज्ड फील्ड, पाउडर कोटर कोटिंग्स का है, पाउडर कोटर पाउडर कोटिंग का भी है, पाउडर कोटिंग का तो बहुत अच्छी तरह से बनाया हुआ है, पॉलिशर है, वुड पॉलिशर है, वुड पॉलिशर है, ये सब बनाया हुआ है। लेकिन क्या होता है, एक मैं भी एक फ्रैंकली बात बोलना चाहता हूँ आपको, आपसे, कि हमारे में ना ये जो ट्रेनिंग के लिए जब बोलते हैं कि ट्रेनिंग के लिए पैसा खर्च करो, तो लोग हिचकिचाते हैं, बोलते हैं यार गवर्नमेंट से कुछ सब्सिडी हो तो चलो देखेंगे, नहीं तो हिचकिचाते हैं। लेकिन अगर प्रोग्राम है, अगर आप कुछ स्पेंड करना चाहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि बहुत स्पेंड कीजिए, कुछ स्पेंड करना चाहते तो करिकुलम रेडी है। और मैंने ये देखा है कि इस्पा, इप्का नहीं सो मच, बट इस्पा और आईपीए, उन्होंने मुझसे कहा कि हम ट्रेनिंग सेंटर भी प्रोवाइड कर सकते हैं। पेंट कंपनी हैव एग्रीड टू प्रोवाइड देयर शॉप फ्लोर्स फॉर ट्रेनिंग। लेकिन इसमें क्या है, जब भी हम प्रोग्राम के लिए जाते हैं लोगों के पास, बोलते हैं यार गवर्नमेंट का स्कीम है तो मैं करूंगा, नहीं तो रहने दीजिए अभी, ये ऐसा होता है। पर सर आप ना पेड कोर्स करना है, सर आप पेड कोर्सेज भी शुरू करिए तो लोग पेड कोर्सेज में भी आना चाहेंगे सर। नॉर्थ इंडिया में बहुत वैक्यूम है सर, हाईली टेक्निकल, क्वालिफाइड और स्किल लेबर की बहुत जरूरत है यहाँ पे, और इससे लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ सर कि जो आपने डेकोरेटिव सेगमेंट्स की बात की है, पेंट तो हम एशियन पेंट का ले आते हैं, पर जब उनके सर्विस चार्जेस की बात आती है तो लेबर चौक से लेबर को पकड़ के ले आते हैं सर, जो पेंटर करने वाला है। मेरा ये कहना है आलोक सर। जी, मैं आपको जवाब देता हूँ इस चीज का। होता क्या है, अक्सर क्या होता है, आपने बड़ी अच्छी बात बोली है। अच्छा सर, विद योर ड्यू परमिशन सर, क्या नाम सर? होता क्या है सर, अभी ना ये जितना भी सर ने बताई बातें, डेकोरेटिव पेंटर, वुड पॉलिशर एंड कारपेंटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, मतलब ये सिर्फ इसकी चल रही थी पेंटर की, बट मैंने 3-4 चीजें और जोड़ी हैं। ये सभी ना पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है कि बाप ने किया, बेटे ने किया, बेटे के बेटे ने किया, बेटे के बेटे ने किया, तो उसको सिखाते चले गए, चलता गया। मैं आपको जिस पॉइंट पे लेके जाना चाह रहा था, वो मैं ये कहना चाह रहा था कि किसी भी ऐसे अनस्किल्ड प्रोडक्ट का, अनस्किल्ड लेबर का किसी के पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लौता ऐसा प्रोग्राम स्टार्ट किया है जो ऐसे छोटे, ये इस तरह के जो काम है, पेंटर का, कारपेंटर का, या और भी इससे ऊपर की साइड भी चले, जैसे आपने बोला कि रोड मार्किंग, पेंटिंग का, रोड बनाने वाले लेबर का, देन हर किस्म का जो भी ऐसी काम है जो लेबर जॉब है, उसको कैसे सर्टिफिकेशन मिले, उसको कैसे रिकॉग्निशन मिले, ये स्किल इंडिया कर रही है। और जो आप कहना चाह रहे हैं ना सर, सुनिए, जो आप कहना चाह रहे हैं कि ऐसा कोई होना चाहिए कि सारी चीजों का, हाँ सर, उसके लिए बिल्कुल होना चाहिए। मैं थोड़े दिनों के अंदर आपको ये चीजें जरूर शेयर करूंगा, पर्सनली बताऊंगा कि स्किल डेवलपमेंट क्या कर रही है और क्या एक प्रोग्रेस होने जा रहा है। आप थोड़ा सा समय दें, इसके बारे में जरूर मैं आपको बताऊंगा। और आलोक साहब, मैं आपके साथ अलग से कांटेक्ट करके जो आप बोल रहे हैं उसमें फिजिबिलिटी देख के जैसे हम कर सकते हैं करने के लिए तैयार है साहब। जी, वेरी इंटरेस्टेड टू डू इट। मेरा कहना है डॉक्टर साहब कि वाटर प्रूफिंग, कंस्ट्रक्शन केमिकल, एमएमए कोटिंग, साइकिल ट्रैक एंड इपॉक्सी कोटिंग्स में बहुत पोटेंशियल है। आप डेकोरेटिव को भूल जाएंगे सर, कितनी लेबर उसमें लग जाएगी और सबको मार्जिन मिलेगा। कृपया आप अपना फोकस इंडस्ट्री डालिए सर। सर देखिए, मैं आपको बताता हूँ, आचार्य सर का फोकस डेकोरेटिव पे नहीं है। मैं इसमें पूरी बात करूंगा। आलोक जी जरा 1-2 मिनट मेरी बात शांति से सुनिए। आचार्य जी ने जो बताया ना, वो अभी जो रेडी अपने पास ये प्रोग्राम है वो बताया। जो प्रोग्राम आपको तैयार करने हैं या आप जिसमें समझते हैं कि ये करना चाहिए, वो आप सजेशन दो, आप उसकी तैयारी करो, वो आपको पूरी हेल्प करने को तैयार है। आलोक साहब, हमारे पास जो 20 जॉब रोल